Good morning, my dear students. Welcome back. Today we are going to start our new chapter number 3, that is Come Back, Mr. Sun. As when you open this page, you can see one poem is written here. So read along with me. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle, all the night. This poem is about stars up in the sky. You may heard this poem earlier also, right? So here you can see below what is written here. You have to rearrange the letters and write their names. One is done for you. Ouddcls. It means clouds, clouds. Next, DRISB. It means BIRDS, birds. NUS. It means SUN, sun. IETSK. It means KITES, kites. Last is NOOM. It means MOON, moon. Now open the next page. As I will tell you that is the chapter about the sun. As how sun is very important in our life. Without sun our life stops. As if sun take a holiday or if sun will not shine one day. What are the changes that will happen in our life? Right? So read along with me. Mr. Sun decides to have some fun. What do you think he does? Read and find out. It is Sunday morning. Mr. Sun looks down from the sky. Mr. Sun, I don't feel like shining today. I wish to rest. I think I'll take a holiday. Mr. Sun goes away from the sky. It gets dark. First squirrel said, Why is it so dark? Where is Mr. Sun? Second squirrel said, I feel afraid. Something is wrong. Let's go home. Both rushed to their home in the hollow of a tree. Next is plant. Where is Mr. Sun? I cannot make food without Mr. Sun. How will I grow? Pigeon to her chicks said, Dear babies, it is dark outside. I cannot get food for you today. All the women, men and children stop whatever they are doing. They are scared. They rush to their homes. For girl said, Mr. Sun, can't take a holiday. I have a football match today. Boy said, What will happen now? Please come back, Mr. Sun. I will explain in Hindi. एक दिन संडे मॉर्निंग था. सन ने डिसाइड किया कि आज मुझे हॉलीडे लेना है. उसको ऐसा फील हो रहा था कि आज मुझे शाइन नहीं करना है, तो उसने डिसाइड किया कि आज मैं रेस्ट करता हूँ, आज मैं हॉलीडे पर चला जाता हूँ. तो ये सोच करके सन जो है वो स्काई से चला गया. फिर उसके बाद अंधेरा हो गया पूरा उसमें. तो फर्स्ट स्क्वायरल ने कहा कि इतना आज डार्क क्यों हो रहा है, बाहर अंधेरा क्यों हो रहा है. सन, वेयर इज मिस्टर सन, सन कहाँ गए हैं. फिर सेकंड स्क्वायरल ने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, चलो हम अपने घर चलते हैं. फिर दोनों ही अपने घर चली गई. हॉलो ऑफ ए ट्री. हॉलो ऑफ ए ट्री मीन्स क्या होता है कि जहाँ पर एक पेड़ होता है, एक पेड़ में एक बड़ा सा लार्ज हॉल होता है जिसमें एनिमल्स, जिसमें बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो है वो उसमें रहते हैं. फिर उसके बाद प्लांट ने बोला कि मिस्टर सन कहाँ है. उसने बोला कि मैं प्लांट के बिना फूड नहीं बना सकता हूँ. हाउ विल आई ग्रो. अब मैं कैसे बड़ा होऊंगा. देन आफ्टर पिजन बोलते हैं अपने बच्चों से, डियर बेबीज, इट इज़ डार्क आउटसाइड. आज बहुत अंधेरा है बाहर, आज मैं तुम्हारे लिए फूड नहीं लेकर आ सकती. इस तरह से और भी जो मैन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन जो भी थे, उन सभी का काम विदाउट सन के कारण रुक गया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था. तो वो सभी डर रहे थे और फिर वो सभी अपने घर चले गए. गर्ल ने कहा कि मिस्टर सन कैन नॉट टेक हॉलीडे. आज सन हॉलीडे नहीं कर सकते, आज मेरा फुटबॉल मैच है. उसके बाद बॉय ने कहा, व्हाट विल हैपन नाउ. क्या हो रहा है. प्लीज़ कम बैक मिस्टर सन. उसने बोला कि सन प्लीज़ बाहर आ जाओ. नाउ ओपन द सेकेंड पेज. व्हाट इज रिटन, रीड अलॉन्ग विथ मी. इट बिकम्स वेरी क्वाइट ऑन अर्थ. Everything comes to a standstill. However, Mr. Snow is very happy. Snow. Now, Mr. Sun cannot melt me. I will make the earth cold. It gets very cold. It begins to snow. The water in the ponds, lakes and rivers freezes. Earth.
Oh dear, I hope Mr. Sun comes back soon. After some time, Mr. Sun looks down to see what everybody is doing. He is shocked. Mr. Sun, oh, everything has come to a stop. I must shine again. Slowly, Mr. Sun Slowly, Mr. Sun comes out. Mr. Snow feels hot and goes away. The flowers begin to smile. The pigeon finds food for her chicks. The squirrel begin to jump and play. Women, men, and children come out of their homes. The girl goes to play football. Everyone is happy. Now, I explain. अब क्या हुआ कि सन ना निकलने से क्या हुआ कि इट बिकम्स वेरी क्वाइट ऑन अर्थ. अर्थ पे जो है पूरा एक तरह से शांत हो गया. सब अपने अपने घर में थे. किसी की कोई चहकने की आवाज़ नहीं आ रही थी. किसी का कोई काम नहीं हो रहा था. एवरीथिंग कम स्टॉप टू अ स्टैंड स्टिल. हर एक चीज़ जो है रुक चुकी थी. किसी का सभी का काम रुक चुका था. ऐसे में मिस्टर स्नो जो था वो बहुत हैप्पी हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि वो सन ना निकलने के कारण उसको जो है बाहर निकलने का मौका मिल गया. हर जगह वो बर्फ़ जमने लगी. वो उस समय बहुत हैप्पी हो गई क्योंकि सन की गर्मी से जो है स्नो जो है वो निकल नहीं पाती, मेल्ट हो जाती है. तो वो खुश हो गया कि मिस्टर सन कैन नॉट मेल्ट मी. आज मुझे सन जो है मुझे नहीं मेल्ट कर पाएगी, मीन्स पिघला नहीं पाएगी. आई विल मेक द अर्थ कोल्ड. आज मैं पूरी अर्थ को जो है कोल्ड कर दूँगी. इट्स गेट वेरी कोल्ड. इट बिगिन्स टू स्नो. और ऐसे में क्या हुआ फिर सब जगह पूरा ठंडा हो गया. पूरी अर्थ जो है ठंडी हो गई पूरी. और हर एक जगह बर्फ़ जमने लग गई. सभी पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, हर जगह बर्फ़ जमने लग गई. ऐसे में अर्थ ने कहा, ओ डियर, आई होप मिस्टर सन कम बैक. ऐसे में फिर अर्थ ने सन को बोला कि अब तो तुम बाहर आ जाओ. हर जगह जो है आइस फ्रीज़ होने लगी है. फिर थोड़ी देर बाद सन ने सोचा कि चलो मैं देखता हूँ क्या हो रहा है. तो जैसे ही सन ने स्काई में से नीचे झाँका तो वो एकदम से शॉक्ड हो गया. अरे ये क्या हो गया? मिस्टर सन, ओ एवरीथिंग हैज़ कम टू स्टॉप. ये क्या हो गया? जो है उसने जैसे ही देखा तो शॉक्ड होके बोला कि ये क्या हुआ? हर एक चीज़ का, हर किसी का काम रुका हुआ था. कोई नहीं निकला था बाहर. सभी अपने घर में थे. अंधेरा था बाहर. तो ऐसे में सन को थोड़ा अपनी रियलाइज़ हुआ अपनी मिस्टेक का. उसने बोला नहीं, मुझे वापस से शाइन होना चाहिए. फिर वो वापस से धीरे धीरे बाहर निकला. और जैसे ही वो स्लोली बाहर आया तो मिस्टर स्नो फील्स हॉट एंड गोज अवे. और ऐसे में जैसे जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ती गई, जो स्नो थी वो मेल्ट होती गई, पिघलती गई. और फ्लावर्स जो थे वो बिगिन टू स्माइल. और वो फ्लावर्स जो थे वो स्माइल करने लग गए थे. और पिजन जो थी वो अपने बच्चों के लिए फिर फूड लेने चली गई क्योंकि अब उजाला भी हो गया था काफ़ी. और इस समय स्क्वायरल जो थी वो भी खुशी के मारे जंप और प्ले करने लगी. वुमेन, मैन, चिल्ड्रन जो थे वो भी सब अपने अपने घर से बाहर आ गए. जिसका जो काम था वो करने लग गया. गर्ल जो थी उसका जो फुटबॉल मैच था वो फुटबॉल मैच खेलने चली गई. और इस तरह से हर एक जो है हैप्पी होने लगा कि चलो अब सन बाहर आ गया तो एवरीवन इज़ हैप्पी. तो दैट मीन्स कि द मोरल ऑफ द स्टोरीज क्या है कि दैट मीन्स सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सराउंडिंग्स ऑफ on earth for our living, right? So I hope you will understand this chapter